Bismillahirrahmanirrahim. Dear 7th class students, if you open your textbook at page number 52, we will find a poem, Trees. It's a very lovely and nice poem written by Joyce Kilmer. In this poem, the, the poet feels himself inferior before God's nice creation because he himself says that only God can make a tree. Only God can make a tree. So he is very much impressed by God's superb creation. Now we will try to read the lines from the poem itself. Only God can make a tree. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing rest, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Joyce Kilmer. Lovely couplets. We see this poem is consists of 12 verses. Uh, you can see that there is the poet has uses alliteration. The poet has used personification to make it look very lovely and nice. So in this poem, this is actually the poem was it is written by Joyce Kilmer. Uh, he was himself born in New Jersey, America. So the poem Trees is his one among several poems written by him. It's uh, uh, Kilmer actually got an inspiration to write this poem because one morning he opened the window and he was fascinated by the trees. He was struck by an idea to personify to the characteristics of the trees, um, uh, to put them in a poem, right? So काफ़ी मुतासिर हो गया ये जॉयस किल्मर एक दिन। तो एक दिन इसने खिड़की जब खोली, खिड़की से बाहर उसने पेड़ देखे तो पेड़ की इस मुतासिर हुआ, पेड़ों की इस खूबसूरती, ट्रीज़ की इस खूबसूरती से वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा कि भाई मैं इसको पर्सोनिफाई करूँगा, मैं इसको ऐसे कैरेक्टर्स पोएम की शक्ल में बयान करूँगा। तो नतीजे के तौर पर उसने ये पोएम तख्लीक की, ट्रीज़। इसमें अपने आप को ये खुदा की तख्लीक के साथ कंपेयर करता है, ट्रीज़ की क्वालिटीज़ को बताता है और फिर अपनी जो पोइट्री को कहता है कि भाई मेरी पोइट्री जो है या किसी भी पोइट की पोइट्री शायरी जो है ये नेचर के बराबर में नहीं है, यानी नेचर के सामने ये बिल्कुल हैच है। ठीक, तो जॉयस किल्मर जो है एक दिन जब ये खिड़की खोलता है तो इसके जहन में एक आइडिया आता है, तो उसने कोशिश की है इन सारी कैरेक्टर्स को पर्सोनिफाई करके इसको पोएम की शक्ल में आपके सामने पेश किया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पोइट है वो नेचर लवर के साथ साथ वो चीज़ों की पहचान भी थी उसे। हाँ, कुदरत की जो ये तख्लीक है इसमें कितनी खूबसूरती होती है, ये कितनी अनमोल होती है, और बाकी जो दुनिया है ये किस तरह इन कुदरती जो ये कुदरत की जो ये मंज़र हैं या ये जो रिसोर्सेज हैं इन पर किस तरह ये डिपेंड है। ये हमारी ज़िंदगी, हमारी जो सर्वाइवल है वो किस तरह से इन ट्रीज़ पर डिपेंड है। ठीक, तो लेट्स सी। आई थिंक आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ए ट्री। तो एल्फ्रेड जो जॉयस इस पहले कॉपलेट में कहता है, ये उसने क्योंकि ये मुतासिर हुआ है काफ़ी ट्रीज़ की खूबसूरती से, जब ये एक दिन अपने घर की खिड़की खोलता है तो इसके जहन में ये आइडिया आता है कि ट्री जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है,
ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये इतना खूबसूरत है, यानी इसकी शायरी से भी, हाँ, इसकी जितनी इसकी शायरी खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसकी शायरी से भी ज़्यादा खूबसूरत ये लवली ट्री है। तो is personify person's traits and actions to inanimate objects. So this is personification है यहाँ पे। इसने यह जो किसी पर्सन्स की क्वालिटी है, अगर वो किसी नॉन लिविंग थिंग में, क्योंकि उसने ये आइडिया पाया कि दैट ट्रीज they have it was a lovely idea, so they are more beautiful. Right? A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. So a tree gets its water. Why does a tree gets its water? जो ट्री ये भी हंग्री होता है, इसका जो मुंह है, जो इसके मूल बना बोन को कथ से प्रेस कर, हाँ, यहाँ पे मदर अर्थ की तरफ इशारा है। तो द अर्थ गेट्स इट्स वाटर for nourishment on the ground, for survival, isn't it? A tree whose mouth is pressed represents that the roots are clinging to the ground while it drinks the sweet flowing, which represents water that nourish the life of a tree. So a tree is dependent on water and minerals which is gets from, जो ये कहाँ से हासिल करता है, कहाँ से, अर्थ से। So in connection with this, just like us humans, we get our sustenance from the earth's abundance and resources, क्योंकि हम भी अपनी जो ज़रूरियात हैं, रिसोर्सेज हैं, वो भी किससे निकालते हैं, अर्थ से। इसी तरह ये जो पेड़ है, इसके जो ये जड़ें हैं, वो भी किसके साथ क्लिंग है, किसके साथ चिपकी हुई है, इस अर्थ के साथ, जो इसे वाटर और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इससे इसको क्या मिलती है, स्ट्रेंथ फॉर लाइफ, और इसको नरिशमेंट मिलती है, और बाकी जानवरों को भी। हाँ, तो क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी रिसोर्सेस कंज्यूम करते हैं, so we and plants, we all depend on this mother earth for our survival. As such, it is also referred to as mother earth, right? So that's why earth is also known as it's sometimes referred as mother earth, because it sustains all the living organisms directly or indirectly. A tree looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. Here you see that जो पेड़ होता है, ये कहाँ से, अर्थ से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो कोशिश ये रहती है कि खुदा की तरफ पहुंचने की, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पे अगर हम दूसरे एतबार से भी देखेंगे, जैसे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, though of different races, cultures, colors or beliefs, they are reached to God, isn't it? They praise, they worship, they are praying and thanking him for the bounty blessings he gave us, isn't it? जैसे मुख्तलिफ किस्म के लोग जो होते हैं, वो खुदा की तारीफ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म, क्योंकि वो जो एहसान जो अल्लाह ताला की हम पर हैं, चाहे वो मुख्तलिफ कल्चर से हो, मुख्तलिफ रेसेस से हो, मुख्तलिफ कलर से हो, मुख्तलिफ बिलीफ से हो, वो तो इबादत करते हैं, खुदा की पूजा करते हैं, है ना, और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह की हम पर, है ना। इसी तरह ये जो ट्री है, इसकी क्या है, ये भी खुदा की उस ब्लेसिंग्स को, हाँ, तो उनका शुक्रिया अदा करता है। तो इसकी जो आर्म्स है, इसकी जो लीफी आर्म्स है, वो भी इबादत की, जैसे हम हाथ उठाते हैं इबादत के लिए, इसी तरह ये पेड़ जो हैं, ये भी जैसे मान लो कि अल्लाह ताला गॉड, उसकी वर्शिप, उसकी प्रेइंग, उसका थैंक, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और उन बाउंटीफुल ब्लेसिंग्स के लिए जो उसने दी हैं। ठीक, तो आगे लेक्चर में से आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना है, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, तो फिर अपलोड होने में दुश्वारी होती है, साथ में हम दूसरा इसका वीडियो भी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।